यीशु मसीह की। Amen, hallelujah. Wow. Hallelujah. मुझे पता है गर्मी है थोड़ा यहाँ पे। I know it's a little hot in here. आज कुछ हमारी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुछ हुई है जिसकी वजह से एसीज नहीं चल रहे। Yeah, the ACs are not working because of a fault in the electricity. मगर लोग जाते हैं सोना कराने, है ना? People go for sauna baths. पैसे देते हैं, They pay for it पसीना निकलवाते हैं। to get sweat out. आपको फ्री में परमेश्वर ने सोना दे दी। You're getting free sauna here through God. हाँ, क्योंकि बोलते हैं सोना जो है बड़ा ही बेनिफिशियल होता है आपके शरीर में। पसीने के साथ सारे टॉक्सिन्स और गंदगी निकलती है शरीर Yeah, से। they say sauna is very good for your health. All the toxins come out along with the sweat. तो ये परमेश्वर के भवन का जो सोना है, सारा कैंसर, सारे ट्यूमर, सारी बीमारी आज पसीने के साथ निकल रही है बाहर यीशु मसीह के नाम So में। this is the sauna of God's house. All the cancers, tumors, every sickness is coming out along with that sweat. Amen. So आपका पसीना वेस्ट नहीं जा रहा। So your sweat is not going to be wasted. आप प्रभु के भवन में आए हो। You're in the house of God. Amen. उसका वचन कहता है कि यदि तू मेरे किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को अगर एक गिलास पानी भी पिलाए मेरे नाम से तो भी अपना प्रतिफल न खोएगा। His word says even if you serve a glass of water to one of my people, you will not lose your reward. Amen. तो आप जो यहाँ पे आए हो, गर्मी में बैठे हो, So those who are here sitting in this heat, हेवनली सोना ले रहे हो, taking the heavenly sauna, आप अपना पुरस्कार नहीं खोने वाले। you are not going to lose your reward. पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी पसीना बहने दे। Yeah, tell your neighbor, let the sweat flow. Amen. Hallelujah. जो देखो प्रभु ने क्या बोला, See what the Lord said. जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो। As your faith, so shall it be done with you. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी दवाई खाई, There are वो so many मरकरी, वो लेड, वो टॉक्सिन्स अंदर ही है शरीर में। There are many people who have taken so much medicine and all the mercury, lead and toxins are inside their body. आज सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं यीशु के Today नाम। all the toxins are coming out in Jesus' name. Amen. परमेश्वर हर चीज से भलाई उत्पन्न करता है। God brings out goodness from everything in our life. जब मैं सोच रहा था प्रभु तेरे भवन में लोग बैठे हैं इतनी गर्मी में, इतने पसीने में, I was thinking about it, Lord, your people are sitting in your house in such heat. तो अचानक मुझे ये थॉट आया, This is the thought that I got. तो सोना में जाते हैं लोग, People go to sauna. हाँ, इतना महंगा पैसे देते हैं, यहाँ पे फ्री हेवनली सोना। It is so expensive, they pay for it. You are getting free heavenly sauna here. Amen. Hallelujah. Hallelujah. सो केवल आज प्रभु जैसे हम टेस्टिमनी सुनते हैं कैंसर्स और ये ही चंगा नहीं करेगा, आज सारे केमिकल्स बैलेंस में आ रहे हैं। So today, not just all the cancers and all the stories we hear are getting healed, all the chemicals are coming back to balance. प्रभु एक हेवनली इक्विलिब्रियम ला रहा है आपके शरीर में। The Lord is bringing a heavenly equilibrium in your bodies. Amen. यानी आपके इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं, That means your insulin levels are coming back to normal. आपके ब्लड प्रेशर्स नॉर्मल हो रहे हैं यीशु Your के नाम blood में। pressures are coming back to normal in Jesus' name. सारे केमिकल्स All the chemicals नॉर्मल हो रहे हैं। are coming back to normal. आज का दिन मैं उस अभिषेक के अंदर आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूं, आज का दिन एक हेवनली रीसेट का दिन है आपके शरीर के लिए। I pray today is the day of a heavenly reset in your bodies in Jesus' आप name. समझते हैं रीसेट क्या होता है? You understand what is a reset? हाँ, हमारा फोन जब नहीं चलता, When our phone is not working, आप उसे जब सर्विस सेंटर में ले जाते हैं when you take it to the service center, तो वो रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स कर देते हैं। they restore your phone back to this factory settings. यानी जब बनाने वाले ने ये फोन बनाया तो जो सेटिंग उन्होंने रखी थी वापस वहां चली गई। Which means when the manufacturer manufactured your phone, the setting they kept, it has gone back to that.
आज पवित्र आत्मा हर किसी के शरीर को रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग कर रहा है यीशु के नाम में। Today the Holy Spirit is restoring your bodies back to the factory setting in Jesus' name. यानी जिस सेटिंग के साथ परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया है वो सेटिंग वापस जा रही है यीशु के नाम में। That means the settings with which God created your body to function, it is going back to that setting in Jesus' name. Amen. Amen. Not just healing, सिर्फ चंगाई नहीं, health. स्वास्थ्य. Not just healing, सिर्फ चंगाई नहीं, health. स्वास्थ्य. बोलो मैं चंगाई से अलौकिक स्वास्थ्य में प्रवेश कर रहा हूं। Say, I'm moving from health, I'm moving from healing into divine health. Amen. Amen. Hallelujah. मतलब sleep patterns restored, blood pressure restored, sugar restored, bone marrow restored, सारा जो कुछ है सर से लेकर पांव तक restored in Jesus name. Everything from head to toe being restored यीशु के नाम में. Amen. So आज बहने दो, So let it flow. पसीना भी हमले प्रभु तेरी आत्मा बहे, मेरा पसीना बहे, सब बहे जो बहना है आज इस जगह बह जाए। So say, Lord, let it flow today. Your spirit, my spirit, whatever has to flow, let it flow. Amen. मगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। आज का वचन बहुत 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 जरूरी है। But you do not let yourself be distracted. Today's word is very, very, very important for you. Amen. और ये आज का जो वचन है वो आपके पिता का हृदय है आपके लिए। And today's word is your Father's heart for you. Amen. So एक सेकंड के लिए, For a एक second. सेकंड, एक मिनट के लिए For a minute, अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद lift करो up your hands and close your eyes wherever और you are. प्रभु यीशु मसीह से बोलो, प्रभु मैं आज आपके उस महान और पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए आया हूं प्रभु। And tell the Lord, Lord, I have come to receive your great, mighty and holy word today. वो वचन जो मेरे शरीर को पूरी रीति से चंगा कर देगा, That word which will completely heal my body today. वो वचन जो मुझे और मेरे परिवार को विनाश से बचा देगा, That word which will rescue me and my family from destruction. और वो वचन जो हमें दीर्घ आयु देगा। And the word which will give us long life. आज आप प्रभु से बोलो, प्रभु आज आप पर्सनली मुझसे बात करो। Tell the Lord, Lord, you speak to me personally today. वो आपका पिता है, उससे पता है आपकी जरूरत क्या है। He is your Father. He knows what you need today. Amen. Hallelujah. आप बैठ सकते हैं। You can be seated. Praise God. Hallelujah. खुश हैं आप आज के दिन? Are you happy today? हाँ, बिजली ना बिजली ज्योति तो हम हैं यीशु के नाम में। Whether there is electricity or no electricity, we are the light in Jesus' name. Amen. So आज का जो वचन है ध्यान धरकर उसको सुनिएगा। So hear today's word carefully. Amen. मैं चाहता हूँ सब जल्दी से सेटल हो जाएं। I want everyone should settle down. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? चलें वचन की तरफ। Should we go into the word? मैं एक प्रार्थना करूंगा फिर हम वचन की I'll तरफ pray and we चलेंगे। go into the word. परमेश्वर पिता, Father God. हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। We come to you in the name of Lord पिता, हम आपका Jesus. धन्यवाद करते हैं Father, we thank कि you आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं। that you love us. You're a loving Father. मैं धन्यवाद देता हूँ उस अभिषेक के लिए प्रभु जो इस भवन में है, जो मेरे ऊपर है परमेश्वर। I thank you for that anointing on this house which is upon me. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा आप मेरे मन में, मेरी सोच विचार में, मेरे मुंह में कब्जा कर लें। I thank you, Lord, that you would take hold of me, of my thoughts, of my mouth. हर एक शब्द जो मेरे मुंह से आज निकले प्रभु वो तेरी तरफ से अभिषिक्त किया गया हो। Every word that comes out of my mouth, Lord, let it be anointed through you.
और प्रभु होने दे कि जो बंधुआई में आज वो छुटकारा पाकर जाएं। And Lord, let it be that whosoever is in bondage, may they be set free today. और हर एक व्यक्ति जो बंधन में है आज परमेश्वर पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए। And everyone who is in bondage, may they be set free completely और today. हर एक बीमार आज अपनी चंगाई लेकर जा रहा है यीशु के नाम And में। everyone who is sick is taking their healing today in Jesus' name. Amen. 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 भजन संहिता 107 Psalms उसकी 107, 19 और 20 अगर पढ़ें, verse 19 and 20. Psalm 107 verse 19 and 20, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन उसने हमें भेजा है। हम एक बार 20वीं आयत देखेंगे, Psalm 107 verse 20। मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें साथ में और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें चंगा किया है। I want you to read this so that you can know that the Father has sent His word and healed us. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और हमें चंगा किया। God has sent His word and healed us. और आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपकी तरफ। And even today, God is sending His word to you. Amen. और अगर आप उसके वचन को आज ग्रहण करते हैं, And if you receive His word today, उसके वचन में ये सामर्थ है कि जिस चीज के लिए वो भेजा जाता है उसको वो पूरा करता है। there is power in His word to fulfill what it's sent for. Amen. कितने लोग चंगाई में चलना चाहते हैं? How many people want to walk in healing? Amen. देखिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लोग आते हैं विश्वास से, हम उनके ऊपर ले हैंड करते हैं, हम आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करते हैं। It's a good thing that people come here with faith and we lay hands on them. We personally pray for them. मगर ये मेरी और परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए। But this is not mine and God the Father's will for you. ध्यान से सुनिएगा, Hear carefully. क्योंकि अगर रात को 3 बजे आपको दर्द हुआ, Because if in the middle of the night at 3 a.m. you have pain in your body, तो किस चंगाई सभा में जाओगे और किस परमेश्वर के दास को ढूंढोगे? then which healing service will you run to? Which man of God will you look for? हम लोग करते रहेंगे We will keep on doing this. क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर में है विश्वास के। Because everyone is in different levels of faith. Amen. सो हम लोग ले हैंड करते रहेंगे, We will keep laying on हम लोग hands. लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करते We will रहेंगे। pray for people personally. मगर परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसकी देह सयानी हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ जाए। But God desires that His body would grow up and become mature. Amen. और आप खुद परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ अपनी चंगाई। And you yourself would learn to receive healing from the Father for yourself. Amen. कि शैतान 3 बजे आपको लक्षण डालने की कोशिश करे, सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है। That if the devil tries to put a symptom in your body at 3 in the night, 4 in the morning, you would exactly know what to do. अगर आप लिख रहे हैं इस चीज को लिख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। If you're writing, write this down. It's very important. और मैं चाहता हूं कि इस पर आप घर जाकर मनन करें पूरे हफ्ते। And I want you to meditate on this through the week. Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक युद्ध है, वो प्रतिफल नहीं है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक प्रतिद्वंद का सबूत परिणाम है, वो एक पुरस्कार नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई के लिए किसको मनाना पड़ेगा? बोलो मुझसे, परमेश्वर को। Because what are most believers thinking? Whom do I have to convince for my healing? They think they have to convince God. सो परमेश्वर मैं उपवास रख दूंगा, So I will fast. परमेश्वर मैं फादर्स किचन में खाना खिलाऊंगा पूरी God, चर्च को I अगर will- तुम मुझे चंगा कर देगा। God, I will distribute food in the Father's kitchen to everyone. सो if हम you लोग say. एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के So साथ। we are trying to strike a business deal with God. अगर तूने मुझे चंगा कर दिया परमेश्वर, If God you healed me, तो मैं ये करूंगा। then this is what I will do. मगर ये हमें सीखना है But we कि have to learn आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। that God is not the one holding back on your पड़ोसी को healing. बोलो, आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। Tell your neighbor, God is not holding back your healing.
आपकी चंगाई किसने रोकी है? Who has held back your healing? शैतान ने। The devil. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, चंगाई क्या है? एक आत्मिक युद्ध है। This is why I told you healing is a spiritual warfare. और हर एक बीमारी जो है And every sickness वो एक अटैक है शैतान की तरफ से। is an attack from the enemy. आप समझ, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी How बात? many of you understand? शैतान का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है। The devil has only one motive, one aim. यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान इसलिए आया, जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो इसलिए आया क्या करे? चोरी करे, हत्या करे और घात करे। उसका यही काम है, यही उद्देश्य है। Jesus told us in John 10:10, the devil, the enemy, has come for one purpose only, to steal, to kill and to destroy. Amen. So आज मैं चाहता हूँ इस चीज को आप सबसे पहले समझो। चाहे सर्दी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे एलर्जी हो, हर कोई शैतान का एक अटैक है। So I want you to understand today, whether it's cold, it's a flu, it's anything, is an attack from the enemy. और वो क्या चाह रहा है? वो आपके शरीर में जगह चाहता है। तो अगर आप बोले अरे तो थोड़ा ऐसी तो है, And what he's looking for is a little bit of space in your body. And if you say, it's just a little bit flu, you have to understand Satan is an intruder. आपको समझना है कि जो शैतान है वो कब्जा करने वालों में से है। He's an intruder. वो घुसपैठिया है। हम देखा है लोग जमीनों पे कब्जा कर देते हैं। You've seen how people intrude into, पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और they आगे। keep extending into a land bit by bit. ऐसे ही वो आपके शरीर के साथ भी करता है। This is what the devil does to your body. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many people understand what I'm saying? ऐसे नहीं होता कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अगले सेकंड आप बिल्कुल बेड में आ गए। It's not like you're healthy completely right now and next moment you're on the bed. एक लक्षण देता है आपको He gives you a symptom और फिर देखता है कि आप क्या करते हो। and then he sees what you do with और it. अगर आप कुछ नहीं करते But if you do nothing तो with it, और उसको बढ़ाता है, then he keeps increasing उसको it. और बढ़ाता है, Keeps increasing उसको और बढ़ाता Keeps है। increasing उसका उद्देश्य क्या है? What is his motive? आपको मार देना समय से पहले। To kill you before time. सो आज मैं चाहता हूं कि आप चंगाई को एक अलग नजरिए से देखें So today I want you to see healing from a different perspective. और आप समझ पाएंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता है। So that you can understand, because people say if God is there, why doesn't he do anything for us? तो ध्यान से इसको सुनिए। So hear this carefully. हीलिंग Changai. इज अ वॉरफेयर। Changai एक युद्ध है। और अगर चंगाई एक युद्ध है और अगर आप एक युद्ध के बीच में हैं, इसका मतलब आपके पास हथियार होने चाहिए युद्ध को लड़ने के लिए। And if healing is a warfare and you're in the middle of a warfare, that means you should have weapons to fight the fight. वचन पौलुस प्रेरित कहता है, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द वाइल्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ डेविल। Apostle प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम अनजान नहीं है दुश्मन की जो युक्तियां हैं उसके लिए। आमेन। सो हीलिंग क्या है? एक वॉरफेयर है। Healing is a warfare. और परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? And what has God given to us? वेपन्स। He has given us weapons, हथियार दिए हैं। मगर आप जानते हैं कितने विश्वासी आज ऐसे हैं, But you know, there are so many believers, वो ऐसे जीते हैं जैसे सिविलियंस जीते हैं। they live like civilians today. सुन रहे, सिविलियंस You आम understand? नागरिक। You understand civilians? अगर अभी एक अटैक हो जाए, If there's an attack now, एक टेररिस्ट अटैक हो जाए a terrorist attack, और यहाँ पे गन्स रखी हो, and there are guns here, मगर आपको चलानी ना आए, but if you don't know how to use those guns, तो आपके लिए वो गन्स बेकार हैं। those guns are useless for you. आप उस गन को पकड़ के डंडे की तरह इस्तेमाल करने की You कोशिश will try to use it like a stick. हो सकता है वो सबसे आधुनिक, सबसे हाई टेक वेपन है, Maybe it is the most advanced, most modern weapon. मगर क्योंकि आपको वो हथियार चलाना नहीं आता, आपके लिए वो हथियार यूजलेस है। But because you don't know how to use that weapon, it's useless for you. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understand what I'm saying? ऐसे ही कितने मसीह हैं जो नहीं जानते जो हथियार परमेश्वर ने उनको दे दिए हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दे दिया है, और वो हमेशा गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं। Similarly, there are so many believers who do not know the authority that God has given to them, the weapons that God has given to them, so all the time they are begging and pleading. दूसरा कुरिन्थियों 10, पहले हम 4 देखते हैं।
2 Corinthians 10 verse 4 and 5. 4 और 5। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, यानी एक लड़ाई है। It says, because the weapons of our warfare are not carnal or physical. It means there is a warfare. पड़ोसी को बोलो एक लड़ाई है। Tell your neighbor, there is a warfare. आज आपकी कॉम्बैट ट्रेनिंग है संडे को। Sunday is your combat training day. आपकी आत्मा में कॉम्बैट ट्रेनिंग है। This is your spiritual combat training day. आमेन। जैसे जो सेना में भर्ती होता है उनको सिखाया जाता है कि हथियार को कैसे चलाना है, आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि वो आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है। Like those who join the army are trained how to use weapons. Today the Holy Spirit will teach you how to use weapons in the Amen. Spirit. फिर से आप लगाइए, हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है, क्या नहीं है, शारीरिक नहीं है। The weapons- इंग्लिश बाइबल कहती है हमारी जो हथियार है वो कार्नल नहीं है, शारीरिक नहीं है। Yeah, the English Bible calls them, they are not carnal. इसका मतलब क्या है? What does it इसका mean? मतलब वो हथियार नहीं है जिनको आप हाथ से पकड़ सको, तलवार, भाले, गन, बॉम्ब, ग्रेनेड, ये नहीं है हथियार। They're not such weapons which you can hold with your hands, guns, swords, whatever. मगर हथियार हैं, But we have weapons. मगर वो आत्मिक हथियार है। But they are spiritual weapons. आमेन। Amen? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many people understand? आत्मिक हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है। God has given you spiritual weapons. परमेश्वर आपके लिए हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको सीखना पड़ेगा उन आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है। But God will not use the weapons on your behalf. You will have to learn how to use the weapons. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand? आर्मी को क्यों वेपन दिए जाते हैं? हम सबको वेपन क्यों नहीं दिए जाते? Why does the army get to have weapons and we don't? आर्मी को वेपन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम हथियार चलाएं, इसीलिए उनको हथियार दिए जाते हैं। Because the government does not want us to learn how to use weapons, so they teach the army how to use weapons. अगर परमेश्वर ही सारी हमारी लड़ाइयां लड़ता तो हमें हथियार नहीं देता, कहता तुम बैठो मैं चलाऊंगा। मगर अगर हथियार हमें दिए हैं, इसका मतलब वो जानता है हम एक लड़ाई में हैं और हमें उन हथियारों को इस्तेमाल करना सीखना है। If God was going to fight all our battles, He would not have given us the weapons. But because we are in a warfare, He knows it. He has given us weapons to fight that warfare. आमेन। और देखते हैं कि ये हथियार कैसे हैं। आप 5th देखिए। And let's see how these weapons are. नहीं, पहले चौथे में जाइए दोबारा। बाइबल बताती है हमारे हथियार क्या हैं, शारीरिक नहीं है, मगर आई लव हाउ इंग्लिश बाइबल सेज इट। इट सेज दे आर माइटी इन गॉड। कैसे हमारे हथियार, कैसे हमारे हथियार माइटी। और यहाँ माइटी का लिखा है मतलब समझ रहे हैं? कि वो जो हथियार है वो सामर्थी है, महान है। मतलब छर्रे वाली पिस्तौल नहीं दी है परमेश्वर, न्यूक्लियर बॉम्ब दिए हैं, माइटी। Amen. माइटी हथियार दिए हैं, महान हथियार दिए हैं परमेश्वर ने आपको। God has given us mighty weapons of warfare. और शैतान डरता है, वो जानता है ये कभी सीख ना ले कि कैसे इन हथियारों को चलाना है, मगर अगर सीख लिया तो मुझे भागना पड़ेगा। And the devil knows this and he is afraid that if you learn how to use those weapons, he will have to run away. आमेन। आज माइटी वेपन चलाने वाले माइटी योद्धा खड़े हो रहे हैं जगह से। Today, mighty warriors are going to rise up who know how to use those mighty weapons. आमेन। कितने लोग मानते हो माइटी योद्धा हैं? परमेश्वर का हाथ खड़ा करें। How many people believe you're a mighty warrior? Lift up your hand. आमेन। बोलो मैं यीशु मसीह का एक माइटी योद्धा हूं। Say, I am a mighty warrior of the Lord Jesus. आमेन। तो आज हम सीखेंगे कि हथियारों को चलाना कैसे। So today we will learn how to use these weapons. हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, The Hindi Bible says, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, the weapons of our warfare are not पर carnal, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। but mighty in God for pulling down strongholds. सो आप एक लड़ाई में हैं। You're in the middle of a warfare. आमेन। हथियार क्यों दिए जाते हैं? Why are weapons given? क्यों सरहद में हमारे सेना के पास हथियार हैं?
Why on the border our army men, they have weapons? वो विजिलेंट हैं, सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी वहां से अटैक आ सकता है. They are vigilant because they know anytime the enemy can attack. परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है पहले पत्रस 5:8 में, बी विजिलेंट एंड सोबर. क्या करो? सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जो शैतान है वो फाड़ खाने वाले सिंह की तरह मौका तलाश रहा है कि कब तुम्हें फाड़ खाए. 1 Peter 5:8, the Bible tells us to be alert, be sober minded, because we have an enemy who is looking for whom to devour like a क्या लिखा है? सचेत रहो और जागते रहो. Be sober and vigilant. जागते रहो का मतलब ये नहीं कि रात को सो मत. It doesn't mean don't sleep at night. जागते रहो का मतलब अलर्ट रहो. It means to stay alert. क्योंकि मैं आपको बताऊंगा शैतान कैसे बीमारी डालता है हमारे शरीर. I'll tell you how the enemy puts sickness in people's bodies. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सचेत रहो, जागते रहो. Yeah, the Bible is telling us to be sober and vigilant. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. Because your adversary, the devil, is roaming around like a roaring lion, seeking whom to devour. यानी जिसको मर्जी उसको नहीं फाड़ खा सकता. It means he cannot devour whomsoever he wants to. अगर ऐसा कर सकता If he could do तो अभी that, हम सबको मार चुका होता. he would have killed all of us. तो वो ढूंढ रहा है मौका. So the devil is looking for an opportunity. कैसे मुझे मौका मिलेगा किसी विश्वासी के अंदर घुसने का और इसको फाड़ खाने का और नाश करने का. How will I get an opportunity to get in a believer's life and to tear him apart? Amen. सो परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? So what is the Lord telling you today? अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हो, If you want to live a victorious life, तो एक तरीका है. there is a way. आप कैजुअल नहीं जी सकते. You cannot live casually. आप ये नहीं कह सकते मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगा, जो मन करेगा वो देखूंगा, जैसा जीना है वैसा जीऊंगा और शैतान भी मुझसे हारा हुआ रहेगा. ऐसा होने वाला नहीं है. You can't say I'll say what I want to say, I'll do what I want to do, and the devil cannot defeat me. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही How है? many people understand what I'm saying? जो एक सरहद में फौजी है वो कहेगा अरे यार ये कुछ हो तो रहा नहीं है कुछ, चलो मैं चिप्स खाता हूँ, रात को भरपेट खाना खा के सो जाता हूँ. The soldiers on the border are not wondering, nothing is happening, so let me eat stomach full and sleep at night. वो वहां पे रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आज हम यहाँ शांति से रह रहे हैं. Because they're on the border protecting us so we can live peacefully here. आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है. You have to guard your bodies. आपको अपनी आंखों की रक्षा करनी है. You have to guard your eyes. आपको अपने कानों की रक्षा You करनी have to है. guard your ears. आप कानों से क्या सुनते हो? What do you hear आप from your आंखों ears? से क्या देखते हो? What do you see from your आप मुंह eyes? से क्या बोलते हो? What do you speak from your mouth? क्योंकि यहाँ से शैतान को एंट्री मिलती है हमारे बॉडी में. Because through these things the devil gets an entry in our life, in our body. हालेलुया. कुछ सीख रहे हैं हम. Are you learning something? दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में चलते हैं अब. 2 Corinthians 10:5. परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो हथियार है वो माइटी है, वो महान है. The word of God says our weapon is mighty, it's great. इसीलिए हम This is why कल्पनाओं का, बोलो कल्पनाओं का, पहली चीज इमेजिनेशन. the first thing is imagination here. शैतान कहाँ अटैक करता है? Where does- आपके शरीर में घुसने से पहले आपकी इमेजिनेशन में घुसता है. Where does the enemy enter in? Before your body, he enters in your imagination. Are you guys getting what I'm saying? सीधे नहीं आपके शरीर में आ जाएगा. He cannot enter your body directly. आपकी इमेजिनेशन को करप्ट करेगा, आपको एक गलत विचार देगा. He tries to corrupt your imagination by giving you a wrong thought. एक छोटा सा सूजा पाँव में, ओह तेरे को कैंसर हो गया. There's a little lump you see on your leg. Oh, क्या you किया have उसने? cancer. What is he doing? सजेशन दिया एक. He has given you a suggestion. और मैं आज आपको बताता हूँ एक लॉ है, एक सिद्धांत है एग्रीमेंट का. And there is a law of agreement. The law of agreement. सहमति का नियम या सिद्धांत. शैतान आपकी सहमति के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता. The devil can do nothing in your life without your agreement. हालेलुया. Hallelujah. बहुत एक्साइटेड हैं आज आप लोग. You all are very excited today. मैंने क्या कहा? शैतान
आपके एग्रीमेंट के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता. What did I say? I said the devil can do nothing in your life without your agreement. जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया और जिस शैतान के साथ हम डील करते हैं वो अलग है. याद है आपको मैंने बताया था? The devil that the Lord Jesus dealt with and the devil that we deal with are different. I taught you, remember? जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया तब तक उसके पास अधिकार था. The devil that the Lord Jesus dealt with, he had authority. मगर अब But now, कुलूसियों 2:15, मगर अब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसको निशस्त्र कर दिया, उसको हरा दिया और क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. but now the Bible tells us that the Lord has made an open show of him and taken away all the authority he had. आमेन. क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है. हालेलुया. आपके वचन में, बाइबल में, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, जो ये ऊपर चढ़ी हुई थी ना दुष्ट आत्माएं, यीशु ने नीचे उतर, यीशु ने नीचे. So all those high principalities, Jesus told them to come back down. और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. He disarmed principalities and powers and made an open public spectacle of और them. क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी. Triumphing over them in it through the cross. किसके द्वारा? Through what? क्रूस के द्वारा. Through the cross. यानी ध्यान सुनो, शैतान क्रूस से पहले और शैतान क्रूस के बाद अलग है. Before the cross and after the cross, the devil has been different. क्रूस से पहले The devil- उसके पास अधिकार था. Before the cross had authority. अब उसके पास कोई अधिकार नहीं Now है. the devil has no authority. अब उसके पास वही अधिकार है जो आप उसे देते हो. Now the devil only gets to have that authority which you give to him. खुद सोचो, अगर शैतान जब आपको नाश करना चाहे तब नाश कर सकता, तो उसे आपको टेम्प्ट करने की या परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं थी. Think about it. If the devil could destroy you whenever he wanted, he had no need to give you a temptation. वो एक चीज जानता है He knows one thing, कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया. जेनेसिस 1:27. that God has created you in his own image and likeness. उत्पत्ति 1:27. परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया God created you in his own और image. परमेश्वर ने आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु को डाल दिया. And God has put life and death in the power of your tongue. नीति वचन 18 उसका 21. Proverbs 18:21. शैतान की जीभ में जीवन और मृत्यु नहीं है. The devil's tongue does not have life and death. आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु है. Your tongue has life and death. तो शैतान कहता है, So the devil क्योंकि वो thinks, छल करने वाला है, because he is a deceiver, वो कहता है अगर मुझे इस व्यक्ति को नाश करना है, he says, if I have to destroy this person, सबसे पहले मैं इसके अंदर गलत विचार डालूंगा. the first thing I'll do is put wrong thoughts in this person. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many understand? गलत कल्पनाएं डालूंगा. I'll give him wrong imaginations. देख तेरे को कैंसर हो गया है. Look, you have cancer. देख तेरे को हड्डियों का रोग हो See, गया you है. have a bone disorder. देख तेरे को ये बीमारी हो गई See, है. you have this. तू डिप्रेशन में है. You are in वो depression. आपको ऐसे बोलता है, वो आपको ये नहीं बोलता तेरे को ये है, वो आपको कैसे बोलता है, मेरे को ये है. So he doesn't speak to you like this, oh, you have. He says, I have this. और आपको लगता है आपका मन बोल रहा है, You think it's your heart speaking to you. मगर वो बोल रहा है But जो it's- छल करने वाला है. It's the devil speaking because he's a deceiver. मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो, और अगर आप गलत सोच को बार बार अपने अंदर आने देते हो और बार बार उसको सोचते हो, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, एक गढ़ बन जाता है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं. But if you allow a wrong thought pattern, it becomes a stronghold which the demons can exploit. आप जानते हैं जितने लोग डिप्रेशन में हैं, जितने लोग आज बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो शुरू हुआ एक थॉट से. You know, so many people are in depression, so many disorders. All of it began with a wrong thought. एक गलत विचार आया, One wrong thought they उसको got. ले लिया, They took it, उसके साथ एग्री किया they agreed with it, और उसके बाद उसको बोलने लगे. and they began speaking it. परमेश्वर के वचन में क्या है? What is in the word of God? जीवन है. क्या है परमेश्वर के वचन में? There's life in the word जो of God. वचन शैतान आपके कान में बोलता है उसमें क्या है? The word that the devil speaks in your ear, it has death. मैं आज आपको कुछ टीचिंग दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने इस बात को. I'm giving you a teaching today and I want you to hear intently. Amen. So
सिकनेस क्या है? एक वॉरफेयर है, एक लड़ाई है। हम एक लड़ाई में, एक वॉरफेयर में हम लोग। Sickness is a warfare. We are in the middle of a warfare. और कब तक रहेगा ये वॉरफेयर? Until when will this warfare remain? जब तक आप इस देह में हो और जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता, तब तक आप इस लड़ाई में रहोगे। Till the time you are in this flesh or until the Lord Jesus comes back, you will stay in this warfare. एक बार एक व्यक्ति एक पास्टर के पास आया और बोला, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहता हूं आज के बाद मेरे जीवन में कोई कलेश ना हो, कोई बीमारी ना आए, कुछ ना हो, मैं मतलब मेरे को शैतान बिल्कुल परेशान ना करे। So one day a man came to a pastor and said, Pastor ji, please pray that from today I will have no sickness, no worries, no tension, no problems in life. तो पास्टर ने कहा, आप ये चाहते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आज प्रभु आपको उठा ले और स्वर्ग बुला ले? So the pastor asked, do you want me to pray that the Lord will lift you up into heavens and take you away? बोले नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? He said, no, what are you saying? उन्होंने कहा, जब तक यहाँ रहोगे शैतान का सामना तो करना पड़ेगा, इसीलिए सीखना पड़ेगा कि उसका सामना करके कैसे एक जयवंत जीवन जी सकते हो। So he said, till the time you are on the earth, you will have to face the devil and you'll have to learn how to walk victorious over the devil. Amen? So हमें क्या करना है सबसे पहले? What do we need to do अगर first? आप एक लड़ाई में हो, आप वॉरफेयर में हो, If you are in the middle of a warfare, अगर आप वॉर में हो, if you are in a war, तो आप एक वॉरियर हो। सिंपल सी बात है, you are a warrior. आप एक योद्धा हो, You are a warrior. आप एक वॉरियर हो। You are a warrior. Amen? और अगर आप वॉरियर हो And if तो you are- आपको कॉम्बैट सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर के राज्य में कैसे मैं युद्ध करके शैतान के ऊपर जयवंत हो सकता हूं। If you are a warrior, you'll have to learn how to combat so you can fight the devil and have victory over him. हर एक बीमारी एक अटैक है शैतान की तरफ से। Every sickness is an attack from the devil. मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, I'll say it again. हर एक बीमारी Every sickness अटैक है शैतान की तरफ से। is an attack from the devil. सो अगर आप चाहते हो कि आप स्वास्थ्य में जियो, So if you want to live in health, तो पहली चीज जो आपको करनी है, the first thing you need आपको डेवलप करनी पड़ेगी वॉरियर मेंटालिटी। is to develop a warrior mentality. आज मसीह लोग ना तरस ढूंढ रहे, तरस। Today, believers are looking for mercy, pity. प्रभु जी, Oh Lord. आपने सोच रहे हो आप बॉर्डर पे है, गोली चली, वहां पे एक फौजी करे मम्मी, Can you imagine there's a soldier at the border and और they're हाथ में fighting? हाईटेक ऑटोमेटिक मशीन गन है He has जो a- एक गोली उड़ा देगी उस बंदे को। He has a high-tech automatic machine gun which one bullet will kill. an enemy. परमेश्वर कह रहा है अपने हथियार उठा और मेरी जय में चलना शुरू कर। The Lord is saying, lift up your weapons and walk in my victory. तू बेचारा नहीं है, तू बेचारी नहीं है, तू विक्टिम नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया You're है। not a victim. You're not helpless. You are my son, my daughter. I have given you power and authority over all the powers of the enemy. आमेन। या तो आप अपना पूरा जीवन एक विक्टिम की तरह जी सकते हो, या तो आप अपना पूरा जीवन एक वॉरियर की तरह जी सकते हो। Either you can live your entire life like a victim or you can live your entire life like a warrior. आमेन। बाइबल बताती है जब गोलायत जो फिलिस्तियों का एक चैंपियन था, Bible tells us when Goliath, who was a champion of the Philistines, 8 से 9 फीट लंबा, he was roughly 9 feet बाइबल tall. बताती है उसका कवच 100 किलो का था, The Bible tells us his shield was 100 kgs. और वो ललकार रहा था And he was challenging. और इजरायली डर रहे थे। And the Israelites were तब afraid. दाऊद आया, Then David came. बच्चा, He was a kid, टीनेजर, teenage kid. उसने कहा ये कौन है He said, who's this? जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? That is challenging the people मैं of अभी God. जाऊंगा, अभी इसकी गर्दन काटूंगा। He said, I'll go now and I'll cut his throat. आमेन। और वो ऐसे नहीं हो गया मम्मी। And he didn't go like this. He wasn't बाइबल afraid. बताती है वो भागा गोलायत को मारने के लिए, भागा। The Bible tells us he ran towards Goliath to kill him, to slay him. जो परमेश्वर दाऊद के साथ था वो परमेश्वर आपके साथ है। The God who was with David is with you. अब हमारी लड़ाई
मांस और लहू के साथ ही हैं। अब मांस में गोलायत नहीं खड़ा है, मगर गोलायत आज खड़ा है कैंसर के रूप में, गोलायत आज खड़ा है बीमारियों के रूप में, गोलायत आज खड़ा है दुष्ट आत्माओं के रूप में। मगर इसीलिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं ऐसे गोलायतों का सर काटने के लिए। Now we are not fighting a physical Goliath, but you have Goliaths against you that come as cancers, as sicknesses, as demons. But God has given you the weapons to cut the throats of such Goliaths. You have to develop tenacity. आपको हियाव पैदा करना होगा। पता है टेनेसिटी क्या होती है? आपने देखा बॉक्सिंग जब धाड़ एक मारा होगा, बताता हूँ तेरे को। मम्मी, पास्टर जी ऐसा क्यों हुआ? अरे उठो, हथियार लो। Oh, Pastor ji, why did this happen to me? Get up and take up your weapons. एक कॉमन डायलॉग आपको बताऊं, कॉमन सबको, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? Yeah, many people seek pity saying, I am such a good person. Why is this happening to me? खुद ही के एग्जाम में खुद ही को मार्क्स दे दी। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं We किया, have never done anything bad to हमारे anyone. साथ ऐसा क्यों हुआ? Why is this happening to us? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शैतान आपका एक दुश्मन है। This happened to you because you have an adversary, the devil. और ध्यान से सुनो इस बात को, And hear carefully. ये केवल एक सरमन नहीं है, सुनो इस बात को। This is not just a sermon. आप एक Hear. युद्ध में हो You are in the middle of a war. और आपका जो दुश्मन है उसके अंदर कोई मर्सी नहीं है। And your enemy has no वो mercy. आपके बच्चों के ऊपर दया नहीं दिखाने He वाला। will not be वो merciful to your 2-2 साल के children. बच्चों के अंदर कैंसर डाल देगा। He will put cancer into उसके अंदर कोई दया नहीं है। He has no mercy. आप एक ऐसे दुश्मन के साथ डील कर रहे हो जो मर्सीलेस है। You are dealing with an enemy which is merciless. इसीलिए आपको भी हियाव बांधकर खड़ा हो जाना है कि मैं परमेश्वर का योद्धा हूं, उसने मुझे अपना अधिकार दिया है। This is why you have to take up that boldness and stand as a warrior. God has given me authority. आमेन। आपको भी उस पर दया नहीं दिखानी है। You also have to show no mercy to him. कितने लोग योद्धा हैं इस जगह में? आवाज सुनना चाहता How many हूं। warriors are here? I want to hear your voice. आमेन। वो यहूदा के गोत्र का शेर उसने जन्म दिया आपको। The lion of the tribe of Judah has given you birth. आप विक्टिम नहीं हो। You're not a victim. मैं बीमार थी, कोई मुझे देखने नहीं आया। Oh, I was sick. Nobody came to आ see जाता me. कोई देखने, ठीक हो जाते तुम। If somebody came to see you, would you be healed? सिंपैथी मत ढूंढो। Stop seeking sympathy. आधे ज्यादा लोग ऑफेंस में इसलिए हैं क्योंकि मेरे को कोई देखने नहीं आया। Most people are offended because they say nobody came to see us. सिंपैथी आपको चंगाई नहीं देगी। Sympathy will not heal you. अधिकार में चलना आपको चंगाई देगा। Walking in authority will heal you. हम लोग किसमें, मैं चाहता हूं कि अभी आप ना अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो, I want you to use your imagination. कल्पना शक्ति का। हम लोग एक फियर्स बैटल में हैं। We are in the middle of a fierce battle. हम लोग एक लड़ाई में हैं। We are in a battle here. मगर अच्छी बात क्या है इस लड़ाई की? शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया। But the good thing about this battle is that Jesus has already इसीलिए defeated the हमें devil. उसके पीछे लड़ने नहीं जाना। So we are not going to fight him. इंडिया की आर्मी पाकिस्तान के अंदर नहीं घुस रही उनको मारने के लिए। The Indian army is not going inside वो Pakistan. अपनी जगह खड़ी है और रेजिस्ट करती है जब वो आते हैं। They stand in their place and resist when they come. ऐसे ही परमेश्वर कहता है जब शैतान तेरे विरोध में आए, खड़ा हो जा और रेजिस्ट कर उसको। This is how the Lord tells you when the devil comes against you, stand and withstand. Resist him. आमीन। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो विश्वास भी कर रहा था, वो भाई वो बहन, Some people उसकी say, मृत्यु क्यों हो गई बीमारी में, वो क्यों नहीं चंगा हुआ? oh, he was believing. Why did he die? He didn't get healed. Why? इसीलिए हमने अपने हथियार भी छोड़ दिए। So they. आपने देखा कभी आर्मी में ऐसा हो कि बगल वाले को गोली लग गई तो कह रहा मैं भी नहीं लड़ रहा अब। Have you seen in the army? अगर दुश्मन उनके एक दोस्त को, एक भाई को, एक कोलीग को गोली लगती है, वो और जोश से लड़ते हो, कहते तेरे को बताता हूं मैं अब। If one soldier gets hit by a bullet, the people that are with them, they fight all the more fiercely. अगर आपका कोई भी रिश्तेदार बीमारी में गया, अगर आपका कोई भी दोस्त बीमारी में गया, तो आपको ये निर्णय लेना है, प्रभु जब तक जिंदा रहूंगा हजारों को चंगा करूंगा यीशु के नाम में। If you have lost a relative, a loved one in sickness, you have to decide, Lord, as long as I live, I will heal सूद thousands. समेत बदला लूंगा शैतान से। I will take this revenge back. अपने to the हथियार devil. नीचे नहीं डालूंगा। I will not put जब down तक my weapon. जिंदा रहूंगा लोगों को चंगा करता रहूंगा यीशु के नाम में। As long as I will live, I will keep healing people in Jesus' name.
आमेन। हाँ, कई ऐसे विश्वासी भाई लोग हैं जो आज बीमारी में चले गए, There are many believers मगर who वो तब भी died पिता के in पास गए sickness. हैं। But even then they went to the Father. मगर हम क्या करें? अगर कोई हमारा भाई इस लड़ाई में चला जाता है बीमारी से, तो हम क्या करें? What do हम we छोड़ do? दें अपने हथियार? नहीं, What do we हम do? और हियाव से लड़ेंगे और हम और ज्यादा पैशन के साथ बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। What do we do if we see a believer who died in sickness? Should we leave our weapons? No, we should all the more aggressively pray for those who are sick. आमेन। ये स्वर्ग में होने वाली नहीं है लड़ाई, यहीं पे है। जितने मेडल लगाने अपनी छाती में लगा लो जब तक जिंदा हो पृथ्वी पे। This war is not going to be there in heaven. As long as you're on the earth, put as many medals you want. आमेन, हालेलुया। जब नरक में मीटिंग चले तो बोर्ड मीटिंग में आपकी फोटो दिखाए शैतान की, ये बंदा है। When there is a meeting happening in hell, in the board meeting, they should have your picture saying, this is the guy. ये है जिसने हमारे पूरे राज्य को खराब कर रखा है। This is a guy who has tormented our entire kingdom. कौन ऐसा योद्धा बनना चाहता है आज? Who wants to be a warrior like that? परमेश्वर ऐसे योद्धाओं को खड़ा कर रहा है जो पूरे नरक के राज्य के लिए विनाश का कारण होंगे। God is raising up such warriors who will be the reason for destruction for the kingdom of darkness. आमेन, हालेलुया। हमारे लिए कोई हार है ही नहीं। There is no defeat for us. कई लोग कहते हैं पास्टर जी मेरा भाई था, ये था, वो कन्फेस कर रहा था, वचन बोल रहा था, फिर भी मृत्यु हो गई। मैंने कहा, क्या हो गया? पिता के पास ही गया है। Some people say, oh, कम से कम लड़ते हुए मरा है ना, my brother was sick. He was confessing, but he दया खाते died. हुए नहीं मरा, But he went to the सिंपैथी Father. बटोरते हुए नहीं मरा, शैतान से लड़ता हुआ गया है स्वर्ग। He died fighting. He didn't die in sympathy or pity. आमेन। एक योद्धा है, योद्धा की तरह जाएंगे घर। We are a warrior. We'll go home like a warrior. पड़ोसी को बोलो अपने हथियार उठा लो। Tell your neighbor, take up your weapons. भैया पहले क्लियर कर देता हूँ, ऑनलाइन कंट्रोवर्सी हो जाती है। आत्मिक हथियार की बात कर रहे हैं या फिजिकल? Let me clarify this. We are talking about spiritual weapons. जो भी देख रहा है लाइव, हमें आत्मिक हथियार है, आत्मिक हथियार। All those who are watching us live, it's spiritual weapons. Spiritual weapons. आमेन, हालेलुया। पता चल रहा है वो काट पेस्ट करके कुछ भी बोल देते हैं फिर। हालेलुया। हमारी लड़ाई दुष्ट आत्मा और शैतान से है। The war is with demons and the devil. बाकी सारे लोग हमारे भाई बहन हैं All the other, जिनको हमें प्रभु में जीतना है। all the other people are our brothers, sisters. We have to win them in the Lord. हालेलुया। सो हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। We will not give up. एक परमेश्वर के दास का मैं सुन रहा था, उनका छोटा भाई बीमारी से लड़ता लड़ता चला गया। I was hearing a man of God. His younger brother passed away in sickness. और उन्होंने देखा उनकी माँ रो रही थी, उनकी रो रही थी, And he saw his mother was crying, his wife was crying. और उन्होंने कहा शैतान, And he said, तूने devil, मेरी माँ और मेरी बहन की आंखों में आंसू दिए ना, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ना तुझे जिंदगी भर रुलाऊंगा। इतने लोगों को जीतूंगा परमेश्वर में, इतने लोगों को चंगा करूंगा कि तू रोएगा कि तूने मेरे भाई को छुआ था। he said, devil, I will heal so many people in life. You will cry that you took my brother away. और आज उनकी today- सेवकाई पूरी दुनिया में है। हजारों लोग उनकी मीटिंग में चंगे होते हैं, हर मीटिंग में। And today his ministry is in the entire world. Thousands of people are healed in his meetings. आमेन। परमेश्वर हमें ऐसा खड़ा कर रहा है, शैतान कहेगा गलत पंगा ले लिया मैंने इस बंदे से। The Lord is lifting us up in a way that the devil will say, I made a mistake messing up with this guy. जॉन जी लेक, एक परमेश्वर के दास जिनके द्वारा महान हीलिंग मिनिस्ट्री, John G. Lake, a man of God through whom mighty healing ministry took place. ओरेगन जो एक शहर था अमेरिका का जहां पे उनकी सेवकाई थी, वहां पे हॉस्पिटल्स बंद हो गए। Spokane, Oregon, the place आप where he चेक कर was, सकते हैं, इसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। all the hospitals were shut in his city. हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा, मगर क्योंकि शहर में बीमार लोग ही नहीं रहे। Because there were no more sick people in that city. जो परमेश्वर तब ओरेगन में कर सकता था, वो परमेश्वर आज दिल्ली में भी कर सकता है। What God did in Oregon then, the same God can do it in Delhi today.
उसका वचन कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं उद्धार ना कर सकूं। His word says, my hand is not short, not weak, that I cannot save. जॉन जी लेक हीलिंग मिनिस्ट्री में क्यों गए? Why did John G. Lake go into healing क्योंकि ministry? उनके परिवार में 6 मौतें बीमारी की वजह से। Because in his family, 6 people died in sickness. तो उन्होंने कहा या तो ये बाइबल झूठी है और परमेश्वर झूठा है, या फिर मैं कुछ समझा नहीं हूं जो परमेश्वर चाहता है कि मैं समझूं। So he said, either the Bible is a lie and God is a liar, or I have not understood what I had to understand. और उन्होंने अपनी बाइबल ली और फ्रस्ट्रेशन में उसको फेंक दिया, He took his Bible and threw it out of frustration. और उनकी बाइबल नीचे फर्श में गिरी और खुल गई, और खुली एक्ट्स 10:38 प्रेरितों के कार्य 10:38 में। And his Bible fell and opened at Acts 10:38. और उसमें लिखा था कि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को चंगा कर रहा था जो शैतान के सताए हुए थे। And it read that Jesus was healing everyone who was tormented by the devil. वो ऐसा था जैसे उनके अंदर एक लाइट बल्ब जला। It was like a light bulb came inside of him. उन्होंने कहा अच्छा हर एक बीमारी तो शैतान का सताव है। He understood every sickness is a torment from the devil. और उन्होंने कहा शैतान अब मुझे पता लग गया है, He said, devil, I know now. अब जब तक जिंदा रहूंगा Now as long as I will लोगों को live, चंगा करता रहूंगा। I will keep healing people. और उस एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को चंगा किया। And that one man healed hundreds of thousands. जॉन जी लेक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। The God of John G. Lake is our मैं God. प्रार्थना करता हूँ आप में से आज हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए आज, जिसके द्वारा परमेश्वर लाखों लोगों को चंगा करेगा। I pray that each one of you would rise up through whom God will heal hundreds of thousands. आमेन। Amen. परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। God is not a partial God. जो उसने तब किया वो आज भी करे। What he did then, he will do today. आमेन। हम लोग क्या हैं? हम लोग पाइप की तरह हैं। क्या है? We are like a pipe. पाइप की A तरह। conduit. कैसे हैं हम लोग? पाइप की तरह। We are like a pipe. सामर्थ तो उसकी है, The power belongs to him. हम तो केवल बर्तन है। We are just a vessel. पर बर्तन से तभी बहेगा जब बर्तन साफ होगा अंदर। अगर क्लॉग हो रखा है तो नहीं बहेगा। But the vessel will only be able to flow if it's clean. If it's clogged up, it cannot flow. क्लॉग क्या करता है? What does a clogging do? डाउट होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। Will it happen? Will it not happen? How will it अगर happen? लिखा है तो होगा। If it is written, it will happen. आमेन। लिखा है तो होगा। चलो पहला तिमोथी 6:12 देखते 1 हैं। Timothy 6:12. परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? What is the word of God telling us? हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हाँ, फाइट द, ओहो हो, क्या लड़ाई अच्छी चीज है? नहीं है। Is fighting a good thing? मगर परमेश्वर कह रहा है एक लड़ाई है जो अच्छी चीज है। But the Lord is telling us there is a good fight. परमेश्वर उसको कहता है गुड फाइट। क्या कहता है परमेश्वर? गुड फाइट। अपने पड़ोसी को बोलो गुड फाइट करने का टाइम है। Yeah. Tell your neighbor it's time for a good fight. Amen. आप बोलो कैसे करेंगे? सबको आती है। You will say, how will we बहुत do it? करी आपने, सास ने ननद से, ननद ने सास से, इसने उससे, इसने उससे, इसने उससे। बस उनसे नहीं लड़ना, माँ सल्लल्लाहु से नहीं लड़ना, शैतान से लड़ने लग जाओ। All of you have done this when you fought with people. Now you don't have to fight with people but with the devil. गुड फाइट। बोलो गुड फाइट। अच्छी कुश्ती. परमेश्वर कह रहा है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। The Lord is saying विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. और आपको पता है यहाँ पे वचन कुश्ती कह रहा है। कुश्ती पता है क्यों? The word is क्योंकि कुश्ती 1 by 1 कॉम्बैट है। The word is saying wrestle here, which is एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में प्रतिद्वंद होता है. और कुश्ती सबसे थका देने वाला स्पोर्ट है। And it is the most tiring sport. जब वॉर होता है ना, वॉर, तो मिसाइल ऐसे करी जा सकती है, एक बटन दबाया मिसाइल चली गई, बंदा बैठा हुआ है, ला 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 ला। When the war is happening, one person can just be sitting and press a button and कुश्ती send a ऐसी नहीं missile. होती। Wrestle doesn't happen. like कुश्ती मतलब आपको पूरी हार्ट से लड़ना पड़ेगा। this. मल युद्ध में in wrestle you have to fight with all your heart. क्यों मैं आज आपको ये बात सिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? क्योंकि मसीह लोग सोचते हैं ना चंगाई हमारी गोदी में गिर जाएगी, Because believers think healing will fall into और वो our lap. हील भी हो जाते हैं दूसरे के गिफ्ट से। आप आए, ले हैंड, आप चंगे हो गए, मगर उस चंगाई को थामना आपको आना चाहिए। And they even get healed by the gifts of other people. People pray for them, they get healed. But you have to learn how to hold on to that healing. आपको उस चंगाई को थामना सीखना है। You have to learn to hold on to that healing. आमेन।
बोलो फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ. टेक होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ. उस अनंत के जीवन को थाम लो. कब्जा कर ले. Yeah. जो शब्द यहाँ पे है वो है कब्जा कर ले. वो अनंत जीवन जो आपके अंदर है उस पर कब्जा कर ले. The eternal life which is in you, take hold of it. जो जब आप किसी पे हाथ रखते हो तो क्या होता है? When you lay your hand on somebody, what जब आप happens? किसी के ऊपर हाथ रखते हो तो क्या हो रहा है? When you lay hands, जो what happens? परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, The life of God which is जो in you, इटर्नल लाइफ आपके अंदर है, वो आपके द्वारा जाता है और उस बीमारी को नाश कर देता है. that eternal life goes from within you and destroys that sickness which is in them. आमेन. तो आपको विश्वास है, जब आप हाथ रखते हो आपको हाथ रखने. So you have the belief that when you lay मगर hands, आज you'll मैं be आपको अपनी पर्सनल चंगाई की बात करूं कि आप स्वयं कैसे चंगे रह healed. सकते But today I'm talking about your personal healing, how you can stay healed. हैं. आप जानते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे करी? Do you know how God created the whole universe? कैसे करी बताइए? How? वचन के द्वारा. By speaking the word. इब्रानी 11:3 में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई. Hebrews 11:3 says that the entire universe was created by the word of God. मैं जल्दी खत्म कर दूंगा आज, मुझे पता है आज बहुत सारे फ्लैग वर्शिप हो रही है. हालेलुया. तेरे भवन में. सो इतनी फ्लैग वर्शिप देख रहा हूं मैं होते हुए, so, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा. आपको जल्दी से कुछ सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से. I'm teaching you something quickly. हर एक चीज कैसे आई? How बोलो did परमेश्वर के वचन से. through the word of God everything came into being. आपने देखा जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, When a mother gives birth to a child, वो बच्चा सबसे पहले किसको रिस्पॉन्ड करता है? अपनी माँ को. the first person the child responds to is to his mother. अपनी माँ की आवाज को पहचानता है Hears his mother's क्योंकि voice उस माँ ने उसको जन्म दिया है. because that mother has given him birth. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हर चीज को जन्म दिया है, पूरी सृष्टि उसके वचन को रिस्पॉन्ड करती है. Because the word of God has given birth to the entire creation, everything responds to the word of God. अब मैं आपको वो दवाई बता रहा हूँ I'm telling you that medicine जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, which has no side और effects, अगर आप खुराक लेते रहे and if you keep taking the dose, तो आप पूरी रीति से चंगाई प्राप्त करोगे. you will receive healing in entirety, in और wholeness. वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना अपने शरीर के ऊपर. And that is by declaring the word of God on your body. जब भी लक्षण आए, Whenever there's a आप symptom, जानते हैं यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार को चंगा किया तो उसने पिता को नहीं कहा, हे पिता इसको चंगा कर. whenever Jesus healed the sick, he didn't say to the Father, Father, heal the sick. उसने बीमारी को डांटा. He rebuked the sickness. पतरस की सासू माँ बीमार थी Peter's mother-in-law was sick, और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया. and Jesus healed her. एक भाई मजाक कर रहे थे, इसीलिए पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार करा. Somebody was saying this is why Peter denied Jesus 3 times. बैड जोक. ओके, मुझे यूएस में किसी ने बताया था. सो पास्टर पॉल युंगी जो सबसे बड़ी कलीसिया जिन्होंने बनाई पूरी दुनिया में, वो कहते थे मैं केवल 2 लोगों से डरता हूँ, परमेश्वर से और अपनी सासू माँ से. Pastor Paul Yungichi, who made the biggest church in the world, he said, I'm just afraid of 2 people, God and my mother-in-law. सो एनीवे, कमिंग बैक. प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस की सास को देखा जिसको बुखार था, तो बाइबल कहती है बुखार को डांटा. When Jesus saw Peter's mother-in-law who had fever, the Bible says he rebuked the fever. पूरी सृष्टि सुन सकती है. The entire creation can hear. अच्छा, आप अभी छतरपुर से बाहर जा रहे हो और आपको एक व्यक्ति दिखे जो पेड़ से बात कर रहे हैं, You're going from Chhatarpur and you see a person talking to the tree. क्या बोलोगे आप? क्या है ये बंदा? What will you call this person? हाँ, पागल है. Yeah, you'll call him a यीशु मसीह lunatic. पागल थे क्या जो पेड़ से बात कर रहे थे? Was Jesus a lunatic? He was talking to the tree. क्यों कर रहे हो पेड़ से बात? Why was he talking to the tree? क्योंकि पेड़ सुन सकता है. Because the tree can hear. अगर आप जाओ और आप बीच में जाओ और समुद्र की लहरों से कोई बात कर रहे हैं,
आप बोलोगे पागल है, if you go to the beach and you're talking यीशु to मसीह लहरों से बात the कर रहा waves, but Jesus spoke to the waves था क्योंकि लहरें सुन सकती हैं। because the waves can hear. पूरी सृष्टि के कान है क्योंकि वो वचन के द्वारा बनाई गई और वचन को रिस्पॉन्ड करती है। The entire creation has ears because it was made by the word of God and it hears the word of God. तो अगर किडनी काम नहीं कर रही, So if kidney is not functioning, ओहो अरे भाई साहब ये जो बीमारी है, ये मत सुनो, बोलो किडनी परमेश्वर का वचन सुन कि वचन में क्या लिखा है, वचन की घोषणा करो, किडनी रिस्पॉन्ड करेगी परमेश्वर के वचन को। don't say, oh, this sickness is like this, but speak to that kidney. The kidney will respond to the word of God. आमेन, हालेलुया। बोलो मेरे पास अधिकार है। Say, I have authority. हम देखेंगे मत्ती 10:1। We will look at Matthew 10:1. यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें। When he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. बोलो मेरे पास अधिकार है। Say, I have authority. यीशु ने अधिकार अपने चेलों को दिया जो आज आपके पास भी है। Jesus gave the authority to his disciples, which you also have कितने now. प्रकार की दुष्ट आत्माओं निकालने का, To cast out how many kinds of demons? कितने प्रकार की बीमारियों के ऊपर, To heal how many sicknesses? How many kinds of sicknesses? कई बारी लोग क्या करते हैं जब वो प्रार्थना कराने आते हैं, मैं आपको बताऊं, Many times what people do when they come for prayer, वो अपना अविश्वास हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते they try to give us their unbelief. हैं। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, पिता यीशु के नाम में चंगे जाओ. पास्टर Oh, pastor, पहले सुन तो लो, first hear my story. मुझे बीमारी 30 साल से, I have this sickness from 30 डॉक्टर ने years. कहा मैं चंगी नहीं हो सकती। Doctor said, I मैंने cannot कहा be बहन तब भी मैं यही बोलूंगा जो बोला है, इसलिए रिसीव करो अपनी हीलिंग को। And I would say, sister, I will say the same thing which I have said. So receive your healing. आपके 30 साल से बोलने से मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, By मैं your- चंगा नहीं करता, उसका अधिकार है, वो चंगा करता है। By your 30 years, I will not put more force. I don't heal. His authority heals. सो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि 30 साल से डॉक्टर कह रहा है लाइल आ जाइए, उसके भवन में आए हो तो बोलो आज मेरा दिन है, मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूँ यीशु के नाम में। So stop saying it's from 30 years. This is what the doctors are saying. It's incurable. When you have come to the house of the Lord today, say it is my day. I am taking my healing with me. आमेन। उस स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिसको 12 साल का लोग था, उसके अंदर वॉरियर मेंटालिटी। When we read about the woman who had the issue of blood from 12 years, she had this warrior आप सोच mentality. सकते हैं उस समय में, आज तो कितनी सारी चीजें हैं, Today उस we समय have- में वो रेगिस्तान में रह रहे हैं, We have so कोई much- फैसिलिटी नहीं है, 12 साल से उस औरत को लहू बह रहा है। They were living in a desert area and she was going through this problem for 12 years. अगर वो सिंपैथी ढूंढती If she was looking for pity, तो मर जाती अपने बिस्तर में। she would have died on her bed. उसने कहा हाय कोई भी नहीं है मुझे ले जाने She वाला, didn't say, oh, there's no one who can take me. अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ मैं I'll open my WhatsApp. और स्टेटस डालती हूँ, I'll put a status. कोई नहीं है अपना यहाँ, सब है पराए। No one is for me. Everyone is against me. फिर एक और स्टेटस आता, Then another आंटी चली status. गई। Their auntie has gone. स्टेटस मत ढूंढो, सिंपैथी मत ढूंढो, परमेश्वर का वचन ढूंढो जो जीवन देता है। Don't look to put a status. Don't look for sympathy or pity from people. Look for the word of God which will give you life. आमेन। उसने क्या कहा? What did he उसने say? सुना He heard. कि यीशु मेरे नगर में है। She heard that Jesus is in my city. ध्यान से सुनो, Hear carefully. वही यीशु The same जो Jesus गलील में चल रहा था, who was walking in Galilee, वही यीशु the same Jesus आज इस कमरे में है। is here in this room today. वही यीशु The same बाहर जो Jesus. लोग हैं ओवरफ्लो में, वो वहां पे है। Everyone who's in the सारे लोग जो overflow, ब्रांचेस से हमें the देख रहे हैं same वो वहां पर Jesus. है। Everyone in our branches, the same Jesus is there. अब या तो आप ऐसे बैठे, अरे मैं तो गया था किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। Now you can either be like, I went there, nobody laid hands on my head. अरे इंसान ने हाथ नहीं भी रखा तो क्या हुआ, अगर विश्वास करोगे तो वो आके हाथ रखेगा आपके ऊपर। Even if man did not lay hands, if you will have faith, he will lay hands on you today. Amen. वो खिंच जाता है जहाँ विश्वास है, जहाँ भूख है, वहां जाता है। He gets drawn towards hunger. जो दिल से उठने वाली जो पुकार है उसको वो मना नहीं कर सकते। That cry that rises up from the heart, he cannot deny it.
सबसे एक पावरफुल स्क्रिप्चर है, एंड जीसस स्टॉप्ड। The most चल रहा powerful था। scripture is यीशु रुक गया। और एक अंधा था बारतिमेउस, There was a blind man, वो Bartimaeus. चिल्लाया, He cried out, हे दाऊद की संतान, Son of David, मुझ पर दया कर। have mercy on me. वहां नहीं जाना था उसको, वो अपना जा रहा था। He was not supposed to go there. He और was लोग उसके walking बोले in his चुप own. कर, चुप, And the people were rebuking him, shut up. क्योंकि अंधों की एक अलग ड्रेस होती थी वहां। Because blind would have a different dress. वो भीख मांग रहा था, ड्रेस थी, भिखारी था, Begging, कोई he इज्जत was, नहीं थी। he was a beggar, he was blind, he had no reputation. उन्होंने कहा चुप कर, They scolded him, said, shut up. बहुत तेज चिल्लाया। He started to shout all the more. और बाइबल कहती है And the Bible says, यीशु मसीह चल रहा था Jesus was walking और यीशु रुक गया। and he stopped. आज जब आप उसको पुकारोगे Today when you call out to him, वो रुक जाएगा, he will stop. आपके पास आएगा, And he will be drawn towards आपके you. शरीर को छुएगा He will touch your body. और सर से लेकर पांव तक आपको चंगाई देगा। And he will heal you from your head to your toes. आमीन। आप देख रहे हो, आपके सामने जो चंगाइयां हो रही हैं, You are seeing those healings that are happening here in front of you. ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, No man can do this. केवल परमेश्वर कर सकता Only God can do this. है। और वो परमेश्वर अनलिमिटेड है, And that God is unlimited. क्योंकि अब आपको अरे परमेश्वर आप तो उस लड़की को छू रहे हो वहां पे, मैं तो यहाँ पे हूँ। वो हर किसी को एक ही टाइम सबको एक साथ छू सकता है, Because he will say, क्योंकि Lord, वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, वो परमेश्वर है। you will say, Lord, you're touching that girl there, but I'm here, but he is present everywhere. He can touch all of us at the same time. कितने लोग आज तैयार हैं उसका टच पाने के लिए? How many of you are ready to be touched by him? अब सोचो ये औरत कहती है बड़ी कमर में दर्द है, This woman would have thought, I have such back pain. हीलिंग मीटिंग तो है पर देखते हैं। There is healing meeting, but I'll see. वो अपने बिस्तर से उठी She और got बाइबल from the बताती है bed. भीड़ को चीरती हुई गई और बार बार बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। The Bible tells us she got up and she went pierced into the crowd, kept on saying, today when I touch the hem of his garment, I'll be healed. Today when I touch the hem of his garment, I'll be healed. आपको क्या लगता है गर्मी होगी वहां पे? Do you think it was hot there? होगी गर्मी, मगर गर्मी ने उसको रोका नहीं अपनी चंगाई लेने से। But the heat did not गर्मी stop आज her. आपको भी ना रोके अपनी चंगाई लेने से। The heat did not stop her from receiving healing. Let the heat not stop you today to receive your healing. उसने कहा भीड़ में जाते, इट्स वेरी हॉट, मैं वापस जा रही हूँ अपने कमरे में। Yeah, she didn't say, I'm going back to my room. जब It's very दिसंबर का महीना आएगा और यीशु मसीह तब चलोगा तब जाऊंगी। hot. When Jesus will come again in December, then I'll try again. आज उद्धार का दिन है, Today is the day of your आज salvation. चंगाई का दिन है, Today is the day of your आज healing. छुटकारे का दिन है, Today is the day of your deliverance. आज बोलो आज का दिन मेरे लिए Say, है। today is for me. Today, for he has ordained a certain day today. क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है और वो आज का दिन है. प्रभु Lord, कब होगा मेरे साथ? when will I receive it? आज, Today, आज. amen. आपको रिसीव करना है। You have to receive. ये कहानी एक दृष्टांत की तरह है, This story is like, क्योंकि आप जानते हैं यीशु ने उसको चंगा नहीं किया। it's a parable because उस Jesus कहानी did को- not heal यीशु her. को तो पता भी नहीं था किसने छुआ। Jesus did not even know who touched him. ये कहानी हमारे लिए एक शिक्षा है। This is a teaching for us. यीशु ने उसको चंगा नहीं किया, Jesus didn't उसने heal अपनी her. चंगाई को खींच लिया, She pulled her healing for herself. उसने अपनी चंगाई को विश्वास से ले लिया। By faith, she drew her healing. उसने कहा आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। She said, today when I will touch the hem of his garment, I will be healed. मुझे नहीं पता आपके शरीर में क्या बीमारी है, I don't know what sickness you have in your body मुझे नहीं today. पता डॉक्टर्स ने क्या बोला है, I don't know what the doctors have मगर told फर्क you. नहीं पड़ता। But it doesn't matter. कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता। There is no incurable sickness which Jesus cannot बोलो, heal. आज जब मैं उसको विश्वास से छूंगा, आज जब मैं उसको विश्वास से छूंगी, मैं आज अपनी चंगाई ग्रहण करके जा रहा हूं। Say, today when I will touch him by faith, I'm going to receive my healing. I'm going back healed from this place. Amen. हालेलुया। आपको इस्तेमाल करना है अपने अधिकार को आज। You have to use your authority today.
तब तक उस स्त्री के पास भी वो प्रिविलेज नहीं था जो आज आपके और मेरे पास है। Even that woman did not have the privilege that you and I उसके have पास today. अधिकार नहीं था, She did not have authority. हमारे पास अधिकार है। We have authority. Come on. आप आज कैंसर से बोलोगे, You will speak to the cancer. आप आज You- उस ट्यूमर से बोलोगे, You will speak to that आप tumor आज today. उस लाइलाज बीमारी से बोलोगे। You will speak to that incurable disease today. ये आपका दिन है। This is your day. मैं आपको बता रहा हूँ, अब जब हम प्रार्थना करने जा रहे I हैं, am telling you when we are going to pray today. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाली The है, power of God will come down upon you. उसका टच आपके ऊपर आने वाला है, His touch is going to come upon और you. जैसे पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको मिलेगा, आपका शरीर सर से लेकर पांव तक चंगा हो जाएगा। And when the Holy Spirit will touch you today, your body will be healed from head to toe. आमेन। हर एक व्यक्ति आज अपनी चंगाई लेके जा रहा है। Everyone is taking their healing with हो them सकता today. है कुछ लोगों के शरीर में 100% उसी समय मैनिफेस्ट हो जाए, Maybe for some 100% healing will manifest कुछ right लोगों now. के शरीर में 30% हो, मगर चंगाई हर कोई लेकर जा रहा है यीशु के नाम। For some it could be 30%, but everyone is taking healing today in Jesus' name. आपको आज इस बात को ध्यान से सुनो, Today, hear this carefully. आज जब जाओगे यहाँ से, Today, when you go from here, इस बात को थाम लेना है hold on to this, कि मेरी चंगाई शुरू हो चुकी है, that my healing has started. My मेरी healing चंगाई has शुरू begun. हो चुकी है। My healing has started. जॉन जी लेक कहते थे John G. Lake used to say, कि सबसे ब्लेस्ड, सबसे धन्य चंगाई वो है जो हल्के हल्के करके मैनिफेस्ट होती है। the most blessed healing is the one that manifests gradually and slowly. क्योंकि जो लोग आते हैं पहले दिन और चमत्कार लेकर चले जाते हैं, कई लोग तो यहाँ पे ये सोच के आते हैं ये बाबा, ये टोटका होता है यहाँ पे, यीशु बाबा के यहाँ, ये बाबा नहीं है यहाँ पे। Because many people come expecting a quick fix. They think there's a Baba here who will pray in Jesus' name and we'll be healed. टोटके के लिए मत आओ यहाँ पे, Don't come here for a quick fix. उद्धार के लिए आओ, अपना जीवन उस परमेश्वर को दो। Come for your salvation. Give your life to that God. आमेन। सो आज अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो, If you have come here for the first time, केवल चंगाई लेकर मत जाओ, चंगा करने वाले को लेकर जाओ अपने साथ। don't just take healing with you, but take the one who heals you. आमेन। एक परमेश्वर के दास हैं, अभी उनका अमेरिका में एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च है, A man of God who has the biggest church in America right now. और उनकी माँ को कैंसर हो गया। His mom was diagnosed with cancer. मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ, अगर कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं आज, How many of you can hear me today? मैं आपसे चाहता हूँ केवल 10 मिनट अब आप ध्यान से मेरी बात I want you to give me 10 minutes intently, को, डिस्ट्रैक्ट ना हो। without distraction. कई लोग क्या करते हैं, वो केवल उनका फेथ किस पे, ले हैंड पे। Many people's faith is only on the lay hand prayer. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, It's okay. जिस तरीके से आपको चंगा कर सकता है प्रभु, हम वो सब करेंगे। We told you whatever way तेल God, लगाना है तेल लगाएंगे, पानी लगाना है पानी लगाएंगे, रुमाल लगाना है रुमाल लगाएंगे, वचन बोलना है वचन बोलेंगे, जो करना है वो करेंगे, पर बस चंगे हो जाओ। whatever method will work for you to be healed, we'll do it. We'll put oil on you, water, handkerchief, whatever you can receive healing with, we'll do it. मगर आपको ये भी सिखाएंगे कि स्वयं आप अपनी चंगाई कैसे ले सकते हो, But we will also teach you how you can take your healing for yourself. कि आप ये ना हो कि आप 30 साल से चर्च में आ रहे हो मगर आज भी आपने डायपर पहना है। So that the story is not that you are in the church since 30 years but wearing diapers still. मम्मी दुद्धू, अरे अब तो आप इतने बड़े हो जाने चाहिए कि आप खुद खाना खाओ, अपनी भूख मिटाओ और वो खाना किसी और को भी दो। By now you should be grown up so you can feed yourself and also feed others. आमेन। मैंने आपको क्या बताया, What I tell you? रात को 3 बजे दर्द होगा, क्या करोगे? What will you do in the middle of the night if you have pain? उस दिन मेरा सबसे, मैं खुश होऊंगा, मेरा बेस्ट डे होगा जिस दिन इस कलीसिया में किसी को भी ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। That will be my best day. I'll be the happiest when no one in this church will need a lay hand prayer. और आप स्वयं वचन से अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना प्रमोशन, अपना डिलीवरेंस, अपनी बढ़ोतरी लेना सीख जाओगे। And you yourself will learn how to take your healing, your deliverance, your promotion from the word for yourself. मगर करते रहेंगे क्योंकि नए लोग आते रहते हैं और उनको जरूरत है। But we'll keep doing it because new people keep coming and they need it. आप जानते हैं एक पास्टर
का काम कितना कठिन है। Do you know मैं आपको बताता हूँ क्यों। how difficult a pastor's job is? I'll tell you why. पास्टर एक वो टीचर है चर्च में जिसको सिखाना है एक क्लास में, जहां नर्सरी का बच्चा भी बैठा है, 12th का भी बैठा है, MBBS वाला भी बैठा है, 4th का भी बैठा है, 3rd का बैठा है, क्या प्रचार करे कि सबको सबके लिए हो। Pastor is the teacher who's teaching a class which has all the kids from nursery to MBBS. What will he teach them? टीचर 12th को सिखाता है, उसे पता है 12th के बच्चों के लिए क्या है, मगर यहाँ पे लोग आते हैं, सबका आत्मिक लेवल अलग अलग है। आपको ऐसा वचन देना है जो सबको ब्लेस करे। When a teacher teaches a class, he knows what to teach them. But as a pastor, you have to teach the people that everybody will be blessed. Amen. इसीलिए प्रार्थना करा करो पास्टर्स की। So pray for pastors. So उनकी माँ को कैंसर हो गया। His mother was diagnosed with cancer. कई बारी क्या होता है, लोग जब इस मीटिंग में आते हैं, उनके लिए प्रार्थना हुई और एकदम चंगाई प्रकट नहीं हुई तो वो गिव अप कर देते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। Many a times when people come to the meetings and they don't see the healing क्या हुआ? immediately, they say, "What happened?" कुछ भी नहीं हुआ। Nothing happened. अरे बहुत कुछ हुआ जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा अभी। A lot happened that your eyes did not see. यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। Jesus cursed the fig tree. पतरस कहता, यीशु क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। Peter said, "What happened, Jesus?" Nothing happened. यीशु कहता, रुक जा जरा। Jesus said, "Wait." अगले दिन जब वापस आ रहे हैं, Next day when they were coming back, देखा पेड़ सूख गया। they saw the fig tree. बोला, had अरे dried up. रब्बी, ये तो वही पेड़ है जिसको तूने कल श्राप दिया था। He said, "Rabbi, look, the same tree you cursed yesterday." जिस दिन कमांड किया, श्राप दिया, जड़ से वो चीज सूखनी शुरू हो चुकी है। The day he commanded it, cursed it, it started to dry up from the roots. अपना विश्वास खो मत, क्योंकि आंखों से नहीं दिख रहा अभी सब Don't कुछ। lose faith because you cannot see with these eyes. जब प्रार्थना होती है, आपने ग्रहण किया, चंगाई शुरू हो चुकी है। When prayer is done, you have received, the healing has started. सो वो समय बहुत छोटे थे That time he was very young. और उनकी मम्मी ये उस समय 2-3 साल के थे, He was 2-3 years old. और मैं उनकी मम्मी की ये गवाही दे रही थी, मैं वो सुन रहा था। His mother was telling her story and I was hearing it. और उन्होंने प्रार्थना करी, डॉक्टर के पास गए, मगर prayed. डॉक्टर ने कहा अब आपको जो करना है वो करो, खाओ पियो, आपके पास बहुत कम समय। They prayed, went to the doctors. The doctor said, "You have very little time. Do whatever you want to do, whatever you like." क्या होगा अगर किसी को ऐसी न्यूज़ मिली, वो आप सारी आशा छोड़ देते हैं, What happens when someone hears a news like that? They lose all hope. वो सारे हथियार छोड़ देते हैं। They leave all the weapons. आपने देखा है क्रिकेट मैच में क्या होता है, Have you seen in a cricket आखिरी match? बॉल तक लड़ते हैं। They fight till the last आर्मी ball. वाले क्या करते हैं, What does the army आखिरी do? सांस तक लड़ते हैं। They'll fight till the last breath. कलीसिया के अंदर ये जज्बा आना है। The church has to get this motive. आमीन। जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस भी होगी, उसकी महिमा करूंगा और उसका वचन बोलूंगा। Till I have my last breath in my body, I will speak His word. I will fight a good fight. सो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता। The doctor said nothing can happen. और नीति वचन 4:22 में लिखा है कि उसका जो वचन है वो दवाई है हमारे पूरे शरीर के लिए। Proverbs 4:22 it says His word is medicine for our entire body. उसका वचन क्या है, What is His word for us? दवाई है हमारे पूरे शरीर It's के लिए। medicine for our तो entire उन्होंने body. डिसाइड किया, So she मैं decided. अब दिन में 3 बार वचन की खुराक लूंगी, She decided I will take the dosage of the word 3 times a day बिना मिस करे। without missing. हर रोज सुबह वो उठती, Every morning when उन्होंने she woke बाइबल up, से सारी चंगाई की आयतें निकाली, she took out all the verses on healing from the Bible, एक डायरी बनाई made a diary. और हर रोज सुबह उठती Every morning when she और woke उस up, वचन की घोषणा करती। she started to speak those verses एक बारी once दिन में, in the रात day, को, in the बिना night. फेल 3 बारी। Without failing, she would do it 3 times every day. 3-4 महीने बाद After 3-4 वो months, डॉक्टर के पास गई, they went to the doctor, ब्लड रिपोर्ट हुई, got the blood report done. उसमें आया कैंसर और फैल गया है। It said the cancer has spread all the more. क्या करोगे आप? What would you do? 3 महीने से वचन बोल रहे हो, 3 months she's been declaring the word. गिव अप कर दोगे? Like, given up. उन्होंने कहा नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगी, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, She said, I won't give up. मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, I will fight till my last breath. मैं आखिरी सांस तक I लड़ूंगी। will fight till my वो last फिर breath. से वचन को बोलती She रही, started speaking the word again. 1 बारी, 2 बारी, Once, 3 twice, बारी, thrice, 4 बारी, वो 4 बढ़ाती गई, बोलती गई। जब kept समय increasing, मिले kept saying. वो परमेश्वर का वचन खोलती, Whenever she परमेश्वर के had- वचन की घोषणा करती, परमेश्वर का वचन कहती, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। Whenever she had time, she would declare the word, I am healed by the stripes of Lord Jesus. और जो डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने में उनकी डेथ हो जाएगी, 3 महीने हो गए, What the doctors had 6 said, महीने हो गए, she would die. 9 in महीने 2 हो गए, months. 1 साल हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई, Yeah.
what the doctors had said she would die. और वो in 2-3 बताती months. हैं, डॉक्टर ने कहा इतना हेल्दी खून हमने अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा. After a year, she went for the test, and the doctor said, we have never seen such healthy blood in anyone's life, in anyone's body. और वो लेडी इस बात को अब 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए, वो आज भी हेल्दी और जीवित है. Now it's been more than 50 years. This woman is still healthy and alive. Her husband passed away, but she's still healthy and आई alive. थिंक वो अभी 85-86 साल की है. She must be 85-86 years old. और अगर आप उनको देखेंगे एकदम फिट हैं, फिट. And if you will see her, she's जब वचन आपको स्वास्थ्य देगा तो आप फिट रहोगे, फिट. when the word will give you health, you will be fit. आमेन. मगर आपका एक दायित्व है. बोलो मेरा एक हिस्सा है. आपका क्या हिस्सा है? अगर आप बेचारे तो आप क्या बोलोगे? हाय मैं तो गई थी चर्च में, कुछ भी तो नहीं हुआ. If you act like a victim, you'll say, I went to the church, nothing happened. हुआ, बहुत कुछ हुआ. A lot और has हो happened. रहा है अभी आपके शरीर में, आपको पता भी नहीं है. And a lot is happening in your bodies right now. You don't even know. मैं आज अपनी टीम को बोलूंगा, ध्यान से सुनिए. हम लोग चंगाई की घोषणा आप सबको भेजेंगे. We will send healing declarations to all of you. हम लोग बनाएंगे We will make them वचन से चंगाई की घोषणा. from the word. We'll और make healing. जितने मसीह में जो FOLJ में हमारा परिवार है, हर किसी को हम आपको पर्सनली भेजेंगे. And to all those who are और our family, we'll send it आप to you. हमसे कमिटमेंट करो, रोज 3 बारी दवाई की तरह परमेश्वर का वचन बोलोगे. And you commit to us that you will make those declarations 3 times every day. आमेन. Amen. कोई शैतान आपको समय से पहले नहीं ले जा सकता. No devil can take you before your time. करोगे आप? दवाई की तरह लोगे? जब अब आज अभी जो होगा, What's जब gonna- मैं कल प्रार्थना कर रहा था आज की सभा के लिए, प्रभु ने मुझे बताया आज एक अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी जब प्रार्थना होगी. When I was praying for today's service, the Lord told me yesterday, a mighty presence will come upon you as I pray. एक टेंजिबल अनॉइंटिंग आप महसूस करोगे आपके शरीर को छूते हुए. You will experience a और tangible हम महान anointing. चंगाइयों को आज देखेंगे अपने And सामने. we will see mighty healings take place today. मगर आपको क्या करना है? What do you have आपको to do? कब्जा करने वाला बनना है. You have to be the one who captures it, seizes it. 2 लोग हैं, आप लगाइए, एक होटल में गए, 2 लोग गए एक रेस्टोरेंट में. So 2 people went to a restaurant. एक को जबरदस्त भूख लगी है One was very hungry और एक को भूख नहीं लगी. and the other was not hungry at all. क्या आप बाहर से देख के पहचान सकते हो? Can you identify them from outside? कई लोग कह रहे हैं नहीं. हाँ भाई हाँ, Yes, you can identify वेटर के them. पीछे पड़ जाएगा. अबे ला भाई कब आएगा? He will get behind the waiter. जल्दी When is ला, my food जल्दी coming? ला. जिसका पेट भरा है वो बैठा है. The one who is already full is कई sitting. बार जब प्रार्थना होती है ना, कई लोग ऐसे बैठे होते हैं. Many times when we are praying, people are sitting like this. अरे भूखे हो तो कब्जा कर लोगे. If you are hungry, जब परमेश्वर take का hold. सामर्थ बहेगा When the तो power of कब्जा God कर comes, लोगे. take hold. वो समय नहीं है कि उसने कौन से कलर की शर्ट पहनी है और वो उसके बाल किस कलर के हैं. That time is not to see who's wearing what color shirt and what color hair they वो carry. समय है आपको अपना चंगाई, वो परमेश्वर का अभिषेक ग्रहण करने का. That time is for you to receive your healing, receive the anointing of God. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? वॉरियर मेंटालिटी. उस स्त्री की तरह आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूऊं, To have that warrior mentality today, when I will touch the hem of his garment. आज मगर कुछ और होगा. But something else will happen today. आज आप अपना हाथ बढ़ाओगे, You will stretch your hand. आप उसको स्पर्श करोगे और वो आपको स्पर्श करेगा. You will touch him and he will touch you. आपने उस सिस्टर की आज गवाही सुनी. You heard जो- that sister's जो testimony. सुप्रीम कोर्ट में, जो बाहर, वो कह रही मैं बाहर बैठी थी She was sitting outside, she said. और उनके ऊपर सामर्थ उतरा और एकदम हील हो गए. And the power of God came down upon her and she got healed. एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत सारी गवाहियां आ जाने वाली है. Exactly that's what's going to happen today. पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसकी अनॉइंटिंग आज इलेक्ट्रिक करंट की तरह, एक बिजली की सामर्थ की तरह यहाँ पे बहेगा और हम लोग महान चंगाइयों को देखेंगे. His power, his anointing will flow in this place like electricity and we will see mighty तैयार है आप लोग? works. खड़े हो जाइए. Are you ready? अपने दिलों को तैयार करो इस समय. Prepare your hearts in this moment. अपने दिलों को तैयार करो इस समय. ये आपका समय है.
ये आपका This is your समय है time. आज, This is your time. ये आपका समय है आज This is your time अपनी चंगाई ग्रहण करने के लिए, to receive your healing. अपनी चंगाई ग्रहण करने के लिए। Receive your healing. अपने हाथों को उठाओ। Lift up your hands. मैं जैसे ही अब प्राप्त करने जा रहा हूँ, एक महान सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाला है। As I pray, a mighty presence will come upon you. पवित्र आत्मा का एक महान अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। A mighty anointing of Holy Spirit will come upon you. आपको पूरी रीति से सर से लेकर पांव तक परमेश्वर आज आजाद कर रहा है। Today, God is healing you from head to toe, from everything. तैयार हो आप लोग? Are you ready? ले लो इस अभिषेक को। Take this anointing. 1 2 3 फायर Agni, फायर Agni. टेक इट ले लो, Take it. ले लो, टेक इट ले लो. बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु वो के नाम सामर्थ में. आ रहा है आपके ऊपर इस समय। That power is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है इस समय The आपके ऊपर। power of God is coming upon you. यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में In Jesus' name. चंगे हो जाओ। Be healed सर से लेकर पांव तक, from head to toe. सर से लेकर पांव तक, From head to toe. यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name. परमेश्वर का वो सामर्थ, The power of वो God. बिजली की सामर्थ आपके सर से लेकर पांव तक जा रहा है Power like electricity is going from your head to your toe. इस समय। In this moment, खून की सारी बीमारियां चंगी हो रही है। every blood disorder is being healed in Jesus' name. खून की सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं। Every blood disorder is being healed. सारा कैंसर नाश हो रहा है सर से लेकर All पांव the तक। cancer is being healed in Jesus' name. सारा ट्यूमर नाश हो रहा है इस समय। All the tumor is being healed in Jesus' name. सारे मानसिक रोग नाश हो रहे हैं यीशु के नाम All में। the mental disorders are being healed in Jesus' name. ग्रहण करो अपनी चंगाई को, Take your healing. रिसीव करो अपनी चंगाई को। Receive your healing. राब्रागा साथाना ब्रागादा राब्रागादा ओ ज़ाला ब्रागादा राब्रागादा। Be healed now। सारा दर्द जा रहा है आपके शरीर से। All the pain is leaving your body. सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा में तुझे आदेश देता हूँ, छोड़कर चली जा। Every spirit of infirmity, I command you, leave now in Jesus' name. हे राजा बादा बारा लगा द्रेगे देने में लेके जाना। परमेश्वर एल्जाइमर्स, किसी का एल्जाइमर्स डिजीज चंगा हो रहा है इस समय। God is healing someone's Alzheimer's disease. किसी को एल्जाइमर्स की बीमारी है इस जगह में, Someone has Alzheimer's disorder आप disease. चंगे हो रहे हैं एल्जाइमर्स से। You are being healed of Alzheimer's. यीशु मसीह के नाम में In Jesus' name. सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। From head to toe, be healed. मैं कमांड करता हूँ आपके शरीर का हर एक ऑर्गन I command every organ of your body परफेक्ट काम कर रहा है इस समय यीशु के नाम में। be made perfect, is working perfectly now in Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु. अजय, अजय अपनी चंगाई ग्रहण करो इस समय। अजय, अजय अपनी चंगाई को लो. देखो, अजय, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है सर से लेकर पांव तक। अजय, God is healing you from head to toe. हालेलुया। ज़ाब्रागादाना मज़े कोटोरो। आपके पास अधिकार है You अब। have अपने authority. मुंह को खोलो Open your mouth और अपने बीमारी को कमांड करो कि मेरे शरीर से निकल के बाहर जा। and command your sickness to get out of your body. हर कोई यहाँ पे, कोई चुप ना रहे। Let no one be silent here. कमांड करो यीशु के नाम में। Command in Jesus' name. यीशु गलियों में, यीशु अंधकार मेरे हर विरोधी में, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम. उस नाम को पुकारो आज। यीशु. आप पूरी रीति से चंगाई लेकर जा रहे हो। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार मेरे हर विरोधी में, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम. यीशु. बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु
यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में यीशु अंधकार मेरे हर विरोधी पे यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई तेरा नाम है जीवन, तूने हर बंधन कर दे सब रोशन आके समा अभी अपना दायां हाथ उस जगह में रखो जहाँ पे आपको बीमारी है, keep your right hand where you have और परमेश्वर का सामर्थ the power of God आपके शरीर में प्रवेश कर रहा will enter into your bodies. है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में In the name of Jesus, मैं पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को रिलीज करता हूँ आपके लोगों के ऊपर। I release the anointing of the Holy Spirit on these people. वो अभिषेक इस समय परमेश्वर That anointing in this उनकी हड्डी हड्डी, उनकी नस, उसकी उनकी मांसपेशियों, उनके फाइबर, उनके सेल्स को इस समय चंगाई प्रदान कर रहे हैं। is going into every bone, every fiber of their body and giving healing to them. प्रभु यीशु मसीह के नाम में In the name of Lord Jesus, चंगे हो जाओ, be healed सर से लेकर पांव तक। from head to toe. बी हील्ड नाउ। चंगे हो जाओ अभी. वो चंगाई प्रकट कर रही है अब आपके शरीर में। That healing is manifesting in your bodies. अभी ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो, ध्यान से अभी अभी चेक करो अपने शरीरों को। Look at me carefully. Check your bodies now. वो करो जो नहीं कर सकते थे। Do what you could not do before. हालेलुया। अगर बैठ नहीं सकते तो बैठो, हाथ नहीं हिला सकते तो हाथ हिलाओ, चल नहीं सकते तो चलो, जो नहीं कर सकते थे वो करो। If you could not walk, could not sit, could not stretch, do that. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Devil, let her go. Out. Be free. आजाद हो जाओ. Be free. आजाद. Satana mama mahande negede. Ribra gadana mazakatara brala. Hallelujah. Hallelujah. खुश हैं आप लोग? Are you happy? अपने शरीरों को चेक करो। Check your bodies now. कितने लोग चंगे हो गए? मुझे हाथ दिखाओ। How many of you are healed? जो लोग चंगे हो गए ऐसे हाथ करो, ऐसे। Everyone who is healed, show me जो your hand. चंगे हो गए अपना हाथ ऐसा करो। Everyone who is healed, show me your hand. आप अपने शरीरों को जांचा आपने अभी? Have you checked your bodies? जांचो अपने शरीरों को। Check your body now. जो लोग चंगे हो गए Everyone who is अभी healed, जल्दी से हमारे बाईं तरफ आ जाओ, हम लोग गवाहियां लेंगे। quickly come to the side, to the left side. We will take your testimonies. हालेलुया। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में. सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में 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 यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है. यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है यीशु का नाम है जो लंगड़े चलाता है. यीशु का नाम है जो लंगड़े चलाता है यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है. यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है. यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है यीशु के नाम में है ठिकाना. यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है. यीशु के नाम में है ठिकाना यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों
छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के यीशु के नाम नाम में में। शिफा, यीशु के नाम शिफा ही शिफा है। यीशु के नाम में शिफा ही शिफा है। यीशु के नाम में मिलती फतह है। यीशु के नाम में मिलती शिफा है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम सुखी में। हड्डियों सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम तो सबसे ही प्यारा है। यीशु का नाम तो सबसे ही प्यारा है। गिरते हुओं को वो देता सहारा है। गिरते हुओं को वो देता सहारा है। यीशु का नाम तो सबसे ही प्यारा है। यीशु का नाम तो सबसे ही प्यारा है। गिरते हुओं को वो देता सहारा है। गिरते हुओं को वो देता सहारा है। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। ऐ कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। हालेलुया। अभी आप जानते हैं परमेश्वर हमारी जगह कहाँ रखी है परमेश्वर ने? You know where God has kept us? बोलो एट द टॉप। कहाँ रखी है? सबसे ऊपर, बोलो एट द टॉप। सबसे ऊंचा। वो कहता है तो पूछ नहीं वरन सर ठहरेगा। He says you will not be the tail but you will be the head. अब वो समय आ रहा है This is the जब time आप देखोगे परमेश्वर के लोग हर एक एरिया में टॉप में बेस्ट होंगे। when you will see God's people being the best at the top in everything. Best. आप देखोगे वो समय आ रहा है और जब वे लोग खुलकर गवाही देंगे कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से वो टॉप पे। You will see that the time is coming when they will testify openly that because of Jesus they're at the top. और आज ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच में है, मैं आपको उनकी गवाही One such person in देने our के लिए midst. बुलाने वाला हूँ। I'm going to give you their testimony today. हमारी इंडिया की पहली UFC चैंपियन पूजा First तोमर हमारे बीच में है। UFC champion Sister Pooja Tomar is here. और वो पहली चैंपियन है इंडिया की। She is the first Indian woman champion in UFC. गॉड ब्लेस यू मैन। सो या आप प्रेज द लॉर्ड। मैं सॉरी थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो रहा है बट जब मैं यूएस में थी
और मैं जीसस में बहुत पहले से थी, बट मुझे ना वो अपना अधिकार कैसे लेना है वो इतना नहीं आता था। तो मैं इतनी होपलेस हो रही थी कि वो इतनी बड़ी स्टेज पे हूँ मैं, आज तक इंडिया की कोई लड़की वहाँ पे पहुँची नहीं थी। और मैं जब आई, सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये लड़की क्या आप इंडिया से हो, क्या आप इंडिया से हो। तो सबके लिए बहुत शौक था कि इंडिया से लड़की, और जीतना तो भूल जाओ इंडिया के लिए। तो मैं जब केज में थी, मैं पहला राउंड हाँ जीत रही थी। सेकंड राउंड में मुझे जैसे पास्टर जी ने बोला कि पंच लग रहा है तो रोना नहीं है, अरे मर रहा हूँ, तो मैं वो मेरे साथ हो गया। सेकंड राउंड में जैसे मुझे पंच किक पड़ रहे थे इतने जोर से, तो मैं अपने ऊपर तरस खाना स्टार्ट कर दिया मैंने कि जीसस मुझे क्यों भेजा था जब इतनी बुरी तरीके से मुझे मार पड़ रही है। लेकिन मैंने घोषणा की कि नहीं, आपने मुझे भेजा है यहाँ, और मैं ये जीत लेके जाऊंगी। और मुझे ऐसा लगा कि होली स्पिरिट ने बोला है कि बेटा ये जीत तुझे दी है और ये विनिंग लेके जा। और अंकित पास्टर जी से मैंने बहुत कुछ, मैं पहले कभी नहीं, मैं इस चर्च को मैंने देखा था, मेरी सिस्टर आई थी, फुल नाइट प्रेयर थी मेरी फाइट से एक दिन पहले, और मैं खुद भी देख रही थी, वो बोल रही जिसके रिश्तेदार यहाँ हैं वो बहुत ऊपर जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ मेरी बहन गई है वहाँ। और मैं आज पहली इंडियन ऐसी बनी हूँ जो इतनी बड़ी स्टेज पे जीत के आई हूँ। और मम्मी आई है, मम्मी मैं बदली नहीं हूँ, मैं आपकी पूजा तोमर हूँ, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा है। मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा विश्वास करेंगी, मैं नहीं बदली हूँ माँ। आमेन। ये बहन तोमर परिवार से है, मैं राजपूत परिवार से हूँ, ये भाई ब्राह्मण परिवार से। किसने कहा यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है? आमेन। He is the God of all flesh. वो हर किसी का परमेश्वर है। आमेन। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने अपनी बेटी को, उसको ब्लेस किया, उसको ऊपर रखा, अब आपका टाइम है ऊपर जाने का। God bless you। और आप जानते हैं क्या किया पूजा ने? क्या किया जब वो जीती? सबसे पहला जब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पास्टर जी आप प्रार्थना करना, मेरा मैच है, और मैं जिस दिन इनका मैच था मैं घुटने में रात को प्रार्थना कर रहा था। मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मैं क्या एक मैसेज डाल दूं ने? मैंने कहा नहीं, वो तो बहुत बड़े पास्टर जी है, कम से कम मुझे 1 घंटा नहीं 2 दिन लगे इस बात को सोचने के लिए कि मैं उन्हें एक मैसेज डाल दूं क्या। मैंने कहा नहीं, अब तो वही है, जीना या मरना, इतना पूरी जिंदगी इस गेम में दी है तो मैं एक मैसेज जरूर डालूंगी ने। और वो मैसेज मेरी जिंदगी में काम करा है। और मैंने पूजा बहन को यही कहा, मैंने कहा जब प्रभु तुम्हें जिताएगा उस स्टेज से उसकी महिमा करना। और आप जानते हैं जब वो जीती, सबसे पहली महिमा उसने प्रभु यीशु मसीह को दी। आमेन। वो समय आ रहा है, अगर आप तैयार हो, परमेश्वर आपको ऊंची चोटियों में बिठाने वाला है, और वहां से आप कहोगे ये मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ किया है। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। आमेन। आमेन। मैंने क्या बोला? आपके लिए कहाँ है जगह? मैं दुबई गया तो दुबई में जहाँ सबसे ऊपर आप जा सकते हो, आई थिंक 148 या 145 ऐसा कुछ फ्लोर है, उसका नाम है एट द टॉप। जब मैं अपनी फैमिली को वहाँ ले गया, और जब बुर्ज खलीफा में जैसे ही मैंने देखा एट द टॉप, एकदम मेरे अंदर से आया, प्रभु ने कहा यही है जो मैंने अपने बच्चों के लिए रखा है, एट द टॉप। एट द टॉप। अगर आप विश्वास योग्य होकर उसके साथ चलते रहो और उसको छोड़ो ना, और जहां परमेश्वर आपको उठाए वहां पे शर्माओ ना उसको महिमा देने के लिए। आपको आइडिया नहीं है वो आपको कहां ले जाने वाला है। एट द टॉप। आमेन। बोलो, मैं पूंछ नहीं सर ठहरूंगा। आमेन। हमारा यीशु धर्म को बदलने वाले नहीं, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर। कितने लोग तैयार हैं अब गवाहियों के लिए?